आज जुमेरात भी है, आज गुरुवार भी है। सच सच बोला, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। कितना तुम लोग का बीए रहता है स्क्रीन टाइमर? डू यू हैव गार्ड्स? इफ यू एनालाइज, देयर आर एट प्रेजेंट देयर आर 37 स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है। आउट ऑफ 37 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स का द परसेंटेज आर गोइंग अप, यस और नो? 15 स्टूडेंट, और 22 बच्चों का परसेंटेज क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। अब previously I was there in another class that was FYD. In FYD the statistics were different, and the statistics in that class was 42 students, 14 and 28. 14 students का the percentage was rising up, increasing, and 28 का percentage was showing was decreasing. Now listen. Now if you analyze, there are your class 37 students, out of that 20 girls, 17 boys. Out of 20 girls, 10 girls का percentage is rising and 10 का percentage is going down. On the same way, 17 boys का the percentage is going up. Can you imagine, out of 17 only 5 का percent is going up and 12 का percent going in all. The whole if you take the holistic view of the class, you will find that out of 37 students, 15 students का the percentage is going up and 22 the percentage is going down. And another important thing, you are there in the FY BCom class, and sorry to say, with due respect, many students, they are having what? They are aimless. What, my dear? Aimless. 1 2 3 4 5 6 7. Rather than ऐसा करेंगे 1 2 3 4 4 then 4, only 4 and 5 and 6 and 6 and 6 7 or 8. Can you imagine, my dear? 8, yani 29 students, they are sitting without any aim. Out of 37, 29 and कितना आएगा बेटा? 8. Only 8 of them, they are having aim. Rest, can you imagine, my dear? How can you be aimless people? This is what data analysis. This is what इसी को बोलते हैं data mining भी बोलते हैं आप. या this is what, अगर एक आम आदमी आएगा तो वो बोलेगा हाँ ये क्या है? Okay, this is some figures are there. This is some data is there. अरे I hope you understanding. Yes. उसको बोलेंगे this is raw data. What, my dear? अब यही चीज को हमने क्या किया? डेटा को भी have converted into what? Information. Now it has become an eye-opener things. Yes or no, friends? Yes. That's out of so many students, yes, maximum of them the percentage is going down. Rest, and my dear, अगर इसको seriously नहीं लोगे, the same thing will continue. For example, I'll justify my statement. In our college, if you'll analyze, in our college we are having 5 divisions are there. FY 5, SY 4, TY 3. Now the question arises where one division is going. Where is the one division going on? कहाँ जा रहा है बेटा? वहाँ जा रहा है? वहाँ या नहीं? अरे वहाँ या नहीं? बस स्टॉप पे कहाँ उतर के आते हो? कार्टर रोड. As simple as that. So it's a time to take your not only academics but your life seriously. I hope you understanding. Otherwise, जैसे for example, it says ना, यही डिसाइड नहीं किया तो आप क्या बोलेंगे? एक I'll share one example with you. I used to go for study purpose in one of the library. यहाँ पर है कमलाबाई library. Long back. I think so. I was in graduation or I was in PG. वो एक student आता था. So I asked him, बेटा, why you are there from morning to early morning to late night? Early morning that library used to start from 7 o'clock और जब एग्जाम रहेगा तो 9-10 तक भी रहते हो, तो सुबह से रात तक. मैं बोला कौन सी क्लास है? तो ही सेड विद आई एम इन FYJC, मतलब कॉमर्स में था. FY, सॉरी नॉट कॉमर्स, आर्ट्स में था. मतलब ओके बेटा, कॉलेज 4-5-6 घंटा, रेस्ट यू आर देयर. क्या करते हो? तो बोले सर आई एम प्रिपेयरिंग. बोला फॉर व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग? सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, नाउ लिसन, ही इज इन विच क्लास, विच स्टैंडर्ड? 11 आर्ट्स. 11th में आर्ट्स में. तो ही इज प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट? फॉर व्हाट फ्रेंड्स?
एमपीएससी। इसका एग्जाम कब होगा? इसका एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज व्हाट? ग्रेजुएशन, यानी आपका व्हाट माय डियर 15, ग्रेजुएशन 15 के बाद ही होगा। कैन यू इमेजिन माय डियर, ही इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम व्हेन? 11th स्टैंडर्ड। एग्जाम कब आएगा? टीवाई के बाद आएगा, 5-6 साल के बाद आएगा। तो बेटा मैं ये आपको बोलता हूँ, वो क्या प्रिपेयर करता एमपीएससी में? पीएसआई। बेटा वो नहीं बनेगा तो क्या हम बनेंगे? ऐसा नहीं बनते बेटा, उसके लिए डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड एंड दिस शोज योर डेडिकेशन, दिस शोज योर डेडिकेशन। Only 8 of them they are having aim, rest of them sorry to use like as simple as it. Why? It's your life. Now tell me why the percent has gone down, even though in 10th standard you are having how many subjects? 10th में 9 और 10, 12th में कितना हुआ? 6. My dear, 10 सब्जेक्ट अभी 6 हो गए, परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ my dear? क्या हुआ बेटा? Why? Distraction. Very good. Now what is, can you define the term distraction? Distraction means what? Enjoying what? Enjoying life. Okay. और bunking college, और अरे मेन मुद्दे पे आओ ना। हाँ, लॉकडाउन जमाना आ गया बेटा, ठीक है। यस, इंस्टाग्राम, अब आई बात लाइन पे, और बीजीएमआई। अच्छा ये क्या है तो मुझे भी नहीं मालूम, चलो ठीक। और फ्री फायर, और यूट्यूब, और हाँ GTA फायर। ओ अच्छा ये भी GTA फायर। ओके, और ओके, और वेब सीरीज, और मूवीज, नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट, और एक्सेट्रा लगा दें, एक्सेट्रा। हाँ ये तो रिलेटेड टू मोबाइल। इसके अलावा इंस्टाग्राम सर सबसे किधर गया? फर्स्ट रैंक। अभी एक बच्चे का मोबाइल देख रहा था। आर यू अवेयर अबाउट स्क्रीन टाइम और स्क्रीन टाइमिंग कितना रहता है? सच सच बोलना बेटा। आज थर्सडे भी, आज गुरुवार भी है, आज जुमेरात भी है, आज गुरुवार भी है। सच सच बोला, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। कितना तुम लोग का बीए रहता है स्क्रीन टाइमर? बेटा हाँ यस बेटा, ये लोग सच नहीं बोलते बेटा, तो सच नहीं बोलते। 10 घंटा ये बोला ना, 10 घंटा। यस फ्रेंड्स, बोला मिलत वाला 12 घंटा, तभी से आ गया दोस्त। ये नहीं आएगा तो क्या क्या बाद में टेलीस्कोप आएगा। और 10 घंटा, 12 घंटा, और बोलो 7, 7.5, अब 14 घंटा है नहीं? 7.5 सर एवरेज डेली एवरेज। और बोल साउथ, अरे बोलो 10 घंटा, 12 घंटा, और फुल नाइट। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हाँ 16 घंटा, थैंक यू सो मच। वो मालूम है इसको गुरुवार है, मैंने तो सच किया था तो श्राप लगेगा। और 16 के ऊपर को, ये 16 के ऊपर रात भी 8 घंटे की रहती है। 16 के ऊपर को 16, और स्काई इज द लिमिट टिल बैटरी ड्रेन्स आउट, या फिर ऑनलाइन चार्जिंग पे लाके, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, पावर बैंक। माय गुडनेस, स्काई इज द लिमिट फॉर डैमेजिंग योर लाइफ, हाँ, एंड फॉर डैमेजिंग योर फ्यूचर। अरे आई होप यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट। अगर दिल पे हाथ रख के बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो माय डियर, तो ये जितना भी जो डैमेज हुआ है ना, क्या इन चीजों के साथ डैमेज नहीं हुआ है? कैन यू इमेजिन माय डियर? Is it not the reason for spoiling your percentage, spoiling your life? My dear, अगर आपने, if you have not taken care, mind you, it is on serious note I am telling you. First of all, your body will be impacted. I'll give your homework to you. अभी नहीं, बात नहीं करना। बेटा listen. I'll give a small homework to you. When you are free after the lecture, what you can do is just type the problems of BGMI. The side effect डालो, problems डालो of BGMI डालो, इसको किसके ऊपर? ChatGPT के ऊपर।
यू विल फाइंड, कोई है? चलिए एक एक निकालो, चलिए R&D मेरे को पूरा याद है, निकालो। द प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग BGMI, बेटा प्लीज बी फास्ट। द प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग BGMI, चैट जीपीटी डालो। यस कॉजेस, ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं, ये अलग प्रॉब्लम देना है। हाँ एग्जैक्टली, यस यस, द पॉइंट इज व्हाट यू टाइप वो हिसाब से आपको देगा। साइड इफेक्ट ऑफ यूजिंग BGMI, लिसन, ये मैं नहीं बोलता हूं, दिस इज व्हाट ChatGPT इज सेइंग। इट सेज दैट, बेटा लिसन, तुम लोग खेलते हैं कि नहीं खेलते? ओ, तो तुम लोग फायर में खेलते हैं? फायर नहीं। मेंटल है, इसको अंदर जाके पढ़ लेना, मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स, फिजिकल हेल्थ इफेक्ट्स। अब देखो देखो बेटा, मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स के यहां सबसे पहला दिखा है एडिक्शन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, फिजिकल हेल्थ इफेक्ट्स, आई स्ट्रेन माय डियर, नेक एंड बैक पेन, हेडेक्स, बिहेवियरल एंड सोशल इफेक्ट्स। अरे माय डियर, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? बिहेवियरल सोशल इफेक्ट्स, आइसोलेशन, पुअर एकेडमिक वर्क परफॉर्मेंस। एक बहुत अच्छा दिया है इसमें, रियल लाइफ दोस्तों और फैमिली से दूरी बढ़ सकती है, एग्रेसिव बिहेवियर, सेफ यूज, अच्छा ये आती है, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बिहेवियरल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम और फाइनेंशियल प्रॉब्लम। बेटा और क्या चाहिए आपको? एंड यू आर टेलिंग मी दैट माई स्क्रीन टाइमिंग इज, एंड यू आर स्माइलिंग ऑन दैट, माई स्क्रीन टाइमिंग इज 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, फुल नाइट। प्लीज माई डियर, फॉर द हेवन सेक, फॉर योर फ्यूचर वाइफ सेक, फॉर योर फ्यूचर हस्बैंड सेक, फॉर योर पेरेंट्स सेक, फॉर योर लाइफ सेक, बोलते ना, फॉर ऑलमाइटी सेक, प्लीज इससे बचो। वन लास्ट, आई शेयर वन एग्जांपल विथ यू, उसका नाम है आपका A.R. रहमान। A.R. Rahman has taken an interview of a small child. He stood first position, first rank in piano in the world. Okay, beta, how are you? Fine. So he said, congratulations. A.R. Rahman said, congratulations. Thank you, sir. There were 160, 150, 160 colleges were there. Sorry, countries were there in that competition, and I stood first in piano. Oh, congratulations, beta. A.R. Rahman asked, beta, how many hours you used to practice? So he replied, sir, 6 to 7 hours. अब A.R. Rahman पूछता है कि सर are you aware about, क्या बोलते हैं उसको, PS का मतलब मालूम है? नहीं मालूम है? इतने अच्छे आप लोग। प्ले स्टेशन। अब वो बोलता है what? A.R. Rahman laughed. अब सुनो, A.R. Rahman बोलता है, बेटा that is the reason you got first position. Most important thing. Why? Because of what? Because of undivided attention. What, my dear? Undivided attention, undivided concentration. तो बेटा ये खाली आपसे नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज हर जगह पर ये बीमारी है, और जो बच जाता है बेटा वो बहुत आगे निकल जाता है। ये मेरी बात दिख के रहना बेटा, ये तो बहुत कम टाइम के अंदर आप घर के बाहर चले जाओगे। यू विल, जैसे एक होता है ना वो ड्रग एडिक्ट पीपल आर देयर। टुडे इन टुडेज वर्ल्ड मोबाइल एडिक्शन इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग, एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग इन योर लाइफ, in your individual life, in your family life, in your social life. Beta, are you aware? एक request, if you are having BGMI आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल है बेटा, उसको जाके अभी डिलीट मारो प्लीज। अदरवाइज इट विल डिलीव योर प्रीशियस लाइफ। मैं बोल रहा हूं ऑन बेसिस ऑफ जस्टिफिकेशन, ऑन बेसिस ऑफ रिसर्च, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन आई एम टेलिंग यू। हवा ही नहीं है बेटा। इफ यू आर हैविंग BGMI, प्लीज, इफ यू आर हैविंग इंस्टाग्राम, उसको भी डिलीट मारो। उस पर डिलीट मारना मतलब अपने दिल को हाथ में लेना पड़ेगा। डू यू हैव गट्स?
to delete BGMI, Instagram? No. It means that you have become so addicted. अरे बेटा, forget about that. You cannot give your mobile also to your parents. Yes or no? Fact. Without कोड, विदाउट पिन आप अपने घर पे मोबाइल रख सकते हो? नो नो नो। वो ऊपर बेटा थर्सडे, हाँ गुरुवार है, श्राप पड़ेगा बेटा। हाँ, वो कब? जब अपने बैग में रहेगा तब। हिम्मत दो अपने पेरेंट्स को। The point is, I am highlighting these gray areas are there, these problematic areas are there, which is वो बोलते ना, क्या बोलते उसको, दिमक। It's like that. It is damaging your whole life. It's a humble request, please. This is the moral of this story. Life दिखा आपको? life examples. और बेटा कितने लोग तो ऐसे हैं बंद आवाज में जो बेचारे फेल हो गए, F5 बीकॉम में फेल हो गए, 1 साल के बाद आ रहा है, कोई 2 साल के बाद आ रहा है। थैंक्स देयर डेडिकेशन के चलो ठीक है, हो गया फेल, कोई प्रॉब्लम, वापस आया, कोई प्रॉब्लम। दिस इज आई सैल्यूट। तो क्या बेटा आप लोग फेल होने के चक्कर में बैठे हो और अभी आपका दिल नहीं करेगा सर हम नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम को डिलीट नहीं मार सकते? अरे बेटा 10 घंटा काय का उसका 10 घंटा स्क्रीन टाइम, 5 घंटा इंस्टाग्राम। एक मार्केटिंग का एक पंच लाइनर है, इट सेज दैट, लिसन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन दिस आई एंड माय लेक्चर। इट सेज दैट there is nothing free in this world. Very fantastic punchliner. It says that there is nothing free in this world. If it is free, then you are the product. You are the product. You are the product. Because of you, your viewership is, because of your likes. भाई तुमको क्या मिला? तुमको नहीं मिला, सामने वाले को पैसा मिला। If it is free, obviously Insta is free, YouTube is free, everything is free, then you are the product. In the next lecture, we will discuss next topic. Is it okay? Thank you so much for listening. Thank you.